स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी स्वामी नारायण
स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय 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 स्वामी नारायण वाला मारे मोला આવ્યા કુમકુમના પગલા પડ્યા મારા મારે મોલા આવ્યા ધન્ય થયા જે સૌ રે દાન દર્શનના આજ સજે મળ્યા દાન દર્શનના આજ સજે મળ્યા કુમકુમના પગલા પડ્યા વાલા મારે મોલા આવ્યા ધન્ય થયા જે સૌ રે દાન દર્શનના આજ સજે મળ્યા દાન દર્શનના આજ સજે મળ્યા કર્યો સગળો વેપાર પામ્યા સમૃદ્ધિ અપાર કીર્તિ કાંચન કામિની એ તો હતા તારા દાસ એ તો હતા તારા દાસ વિચર્યા અપાર કાઈ બાકી ના લગાર બાકી એક જ હતું સૌનું કલ્યાણ કાજ સૌનું કલ્યાણ કાજ કલ્યાણ યાત્રામાં ગયા જીવ સૌ ધન્ય કર્યા વેપાર ચૈતન્ય કર્યા રે દાન દર્શનના આજ સજે મળ્યા દાન દર્શનના આજ સજે મળ્યા જે મધુરની સુવાસ એવી અર્પો સાક્ષાત પંકે જન્મેલા પંકજ શા નિર્લેપ અપાર તમે નિર્લેપ અપાર જે રવિનો પ્રકાશ ભાંગે ભવની ધારાશ તેમ જીવના અધોધનો કરતા વિનાશ તમે કરતા વિનાશ મસ્તી ગુલાબી તારી તારા અમૃતકારી પ્રભુતાના પુંજ રે યારે દાન દર્શનના આજ સજે મળ્યા દાન દર્શનના આજ સજે મળ્યા તારો ભીડો અપાર પરે અર્થે સદાય સેવા અવિચલ નિરપેક્ષ પરાભક્તિ સોહાય પરાભક્તિ સોહાય બન્યો સાચો ગુલામ આપ્યો જોગી પૈગામ સૌને સુખિયા કરવાને કાજ જીવન તમામ તારું જીવન તમામ ભગ્ન હૃદય પુષ્ટ કર્યા પ્રાણ મહિમાના પૂરા સૌના ચૈતન્ય દાતા રે દાન દર્શનના આજ સજે મળ્યા દાન દર્શનના આજ સજે મળ્યા સમ્રાટ તું સરળતા સાક્ષાત તું છે ચૈતન્ય વિભૂતિ તારું વર્ણન શું થાય તારું વર્ણન શું થાય તારો મહિમા અમાપ તે તો જાણ્યો ના જણાય કૃપા કરજે ઓળખાણમાં કઈ ભૂલ ન રહી જાય કઈ ભૂલ ન રહી જાય પ્રભુનું સ્વરૂપ જે છે પ્રભુ સેવા તે જ કરે છે એવી તારી રીતિ નીતિ સમજાય દાન દર્શનના આજ સજે રે મળ્યા દાન દર્શનના
સાંભળે તત્કાળ તો તું સાંભળે તત્કાળ તારો મૈત્રી અભિપ્રાય દિવ્ય એકતા જણાય ચારે બ્રહ્મ સ્વરૂપ મારી જીવતા સવાય હોજી જીવતા સવાય મુલ્ક માત્ર બની રહી ગમતું તારું કર્યા કરે કહીએ તારા વધી જઈએ રે ધન દર્શન નાદ સજે રે મળ્યા ધન દર્શન નાદ સજે રે મળ્યા કુમકુમના પગલા પડ્યા વાલા મારે મોલ આવ્યા ધન્ય થયા જ સૌએ ધન દર્શન નાદ સજે રે મળ્યા ધન દર્શન નાદ સજે રે મળ્યા ધન દર્શન નાદ સજે રે મળ્યા. ગજાનંદ સ્વામી મહારાજ કી જય જય જય. ધામ ધામી મુક્તો કી જય જય જય. સર્વગુણાતીત સ્વરૂપો કી જય જય જય. મુક્તાક્ષર પુરુષોત્તમ કી જય જય જય. જે ઉત્પત્તિ તથા સ્થિતિ લય કરે વેદો સ્તુતિ ઉચ્ચરે જેના રોમ સુછિદ્ર માણુ સમા બ્રહ્માંડ કોટી ફરે માયા કાળ રવિ શશી સુરગણો આજ્ઞાન લોપે ક્ષણ એવા અક્ષરધામનાધિપતિ શ્રી સ્વામિનારાયણ. વાણી અમૃતથી ભરી મધુસમી સંજીવની લોકમાં દ્રષ્ટિમાં ભરી દિવ્યતા નિરખતા સુદિવ્ય ભક્તો બધા હૈયે હેત ભર્યું મીઠું જનનીસુ નેહાસ્ય મુખે વસ્યો તે શ્રી જ્ઞાનજી યોગીરાજ ગુરુને નિત્ય નમો ભાવસું. જેની અમૃતવાણી તો વહી રહી સાક્ષાત મહિમા રૂપે જેની બ્રાહ્મી સ્થિતિ અહોલીન કરે શુભવ્ય અક્ષર પદે શરણાગત નિજ અલ્પ જીવ સહુના શ્રેયાર્થ તત્પર રહે કાકા સ્નેહલ સિંધુ દિવ્ય વિભુને હૈયું તો વંદન કરે. જે છે શાંત પ્રશાંત સાગર સમા સાધુ ગુણે જે શોભતા જેના દર્શનને સમાગમ થકી શાંતિ સહુ પામતા જે છે માનસ પુત્ર કાકાજીના ને ભજન માલિન રહે એવા સાધક વૃંદના ગુરુ સુરત વંદન ભરત ભાઈને. ભક્તિ સભર ગુલતાન થઈને મહાપૂજા જે કરે અનુરૂતિ અદ્ભુત જાળવી રીઝવ્યા કાકાજીની મલકંતુ મુખ પુલકિત હૈયો યુવાનોની જે ગમી એવા સુરદ ભૂલકુ વિરલ વંદન અહો અસી ભાઈની. બ્રહ્મરૂપ નિજને માનતા વળી શ્રીજી હૈયે ધારતા જે મસ્ત રહીને પ્રભુ ભજનમાં સુરદ ભાવ વધારતા મહિમા સભર દાસત્વ છલકે જીવનમાં છે સહજતા
काका स्वरूप दिनकर विभु संभार आमा धन्यता। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद श्री स्वामीनारायण भगवान की असीम कृपा से हम आज श्री स्वामीनारायण भागवत स्कंध 11वां ज्ञान की पराकाष्ठा उसका अध्याय 8वां ले रहे हैं। अध्याय 8 में श्रीजी महाराज को अंतर्जामी जाने तो प्रतिमा और संत की दोनों की मर्यादा रहती है, ऐसे आदि ज्ञान वाक्य इस अध्याय में आने वाले हैं। शिष्य पूछते हैं, पूर्व के संस्कार मलिन हो तो किस तरह टल जाते हैं? गुरु से कहते हैं, श्रीजी महाराज की आज्ञा और उपासना वाला उपरांत अखंड मूर्ति में जो रहता हो, ऐसा अति बड़े पुरुष का जिसके ऊपर राजीपा होता है, उसको पसंद हो ऐसा मलिन संस्कार हो, वो भी नाश होते हैं। राख हो रंक हो तो राजा बन जाता है, और कैसे भी भुंडे प्रारब्ध हो तो वो रूढ़े हो जाते हैं, वो अच्छे हो जाते हैं। कैसा भी विघ्न उसके सर पे आने वाला हो तो भी उसका नाश हो जाता है। यहाँ पे गुरुश्री ये बता रहे हैं कि काल कर्म माया प्रारब्ध और हमारे जो दोष है उसके ऊपर ये गुणातीत गुरु जो है वो ऐसे मेख मारते हैं कि जिसके वजह से जो जीव है उसका हित होता है। किसी भी तरह से उसका हित होने वाला होगा तो भी उनको यदि हमने राजी किया हो पहले कभी, और उनकी आज्ञा और उपासना में हम यदि अखंड बरतते हो तो हमारी रक्षा हो जाती है और हमारा हित ही होता है। ये बात यहाँ पे गुरुश्री बता रहे हैं। शिष्य पूछते हैं, सत्संग में रहने वाले जितने भी अवगुण हो वो सभी का नाश हो जाए और दिन बर दिन श्रीजी महाराज की भक्ति जो है वो वृद्धि को प्राप्त होती जाए, उसका उपाय क्या है? तो गुरु से कहते हैं कि प्रगट ऐसे निर्दोष सत्पुरुष का जैसे जैसे हम गुण को ग्रहण करते जाते हैं वैसे वैसे उनके जो अवगुण हैं वो टलते जाते हैं और उनकी भक्ति जो है वो दिन ब दिन वृद्धि को प्राप्त होती है। शिष्य पूछ रहे हैं, एकांतिक धर्म किस तरह सिद्ध होता है? तो गुरु से कहते हैं, निर्वासनिक पुरुष हो और जिन्हें श्रीजी महाराज के बारे में स्थिति हो चुकी हो, उनके वचन के सहारे एकांतिक धर्म सिद्ध हो जाती है। फिर भी ग्रंथ में लिख के रखा है कि उसके वजह से वो उसको प्राप्त नहीं कर सकता। कोई सुन के वैसी की वैसी बात कहने को जाए तो उसको कहने के लिए भी आने वाला नहीं है। इसलिए जिन्होंने एकांतिक धर्म में स्थिति कर दी हो, प्राप्त कर ली हो, उसके माध्यम से ही एकांतिक का धर्म प्राप्त हो सकता है। शिष्य पूछ रहे हैं, अष्ट प्रकार की मूर्ति में और संत में क्या फर्क है? गुरु से कहते हैं, सत्पुरुष से ज्ञान उत्पन्न होता है, पर अष्ट प्रकार की मूर्ति थी ज्ञान होता नहीं है। सत्पुरुष जीव का साकार ब्रह्ममय तनु बनाते हैं और ऐसा मूर्ति से शक्य नहीं है। सत्पुरुष श्रीजी महाराज का निर्विकल्प निश्चय कराते हैं, वो मूर्ति से शक्य नहीं है। इसलिए सत्पुरुष और मूर्ति में यह फेर है।
शिष्य पूछ रहे हैं, जो पग श्रीजी महाराज की प्रतिमा के आगे तथा संत के आगे फेल फितूर करता है और लेस मात्र भी श्रीजी महाराज का तथा संत का डर नहीं रखता, उसका निश्चय है कि नहीं है? क्या पहचानना, उसका निश्चय है या नहीं है? गुरु से कहते हैं, श्रीजी महाराज को अंतर्यामी जानकर संत और प्रतिमा के आगे जो मर्यादा नहीं रखता है, उसे तो श्रीजी महाराज का निश्चय नहीं है। शिष्य पूछ रहे हैं, भक्त भगवान स्वयं के भक्त के सभी अपराध को माफ करते हैं, पर ऐसा कौन सा अपराध है जो भगवान माफ नहीं करते? तो गुरु जी कहते हैं, श्रीजी महाराज और उनके भक्त का जो द्रोह करता है, यहाँ पे दोनों की बात है, एक श्रीजी महाराज की स्वयं की और उनके भक्त का जो द्रोह करता है, ऐसे अपराध को श्री स्वामीनारायण भगवान माफ नहीं करते। उपरांत सभी अपराधों के उपरांत भी श्री सहजानंद स्वामी को अन्य अवतार जैसा पहचाने तथा निराकार माने, तो ये सबसे बड़ा अपराध है। श्रीजी महाराज कभी भी निराकार नहीं है और वो अन्य अवतार जैसा नहीं है, वो स्वयं अवतारी है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम है। इस अपराध को श्रीजी महाराज माफ नहीं करते। यह अपराध करे तो पंच महापाप से भी अधिक पाप लगता है। शिष्य पूछते हैं कि इस सत्संग में श्री स्वामीनारायण भगवान को और उनके भक्त को निराकार कैसे पहचाने, निराकार कैसे कहे जा सकते हैं? गुरु जी कहते हैं, श्रीजी महाराज और उनके भक्त को दिव्य साकार जो जानता है, तो छोटा बड़ा जो वचन है उसका लोप नहीं कर सकता, और शिक्षापत्री, धर्मामृत और निष्काम शुद्धि वगैरह श्रीजी महाराज के वचन यदि उसका लोप हो जाता है तो निराकार जानना कहलाता है। शिष्य पूछता है, भगवान कब पृथ्वी पर पधारते हैं? गुरु जी कहते हैं, पृथ्वी के अंदर जब अधर्म व्याप हो जाता है, उपरांत गाय, ब्राह्मण, पतिव्रता स्त्री तथा सत्पुरुषों को असुर दुख देते हैं, तब श्रीजी महाराज मूल अक्षर आदि मुक्तों और अवतारों को साथ लेकर पधारते हैं। यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा है कि श्रीजी महाराज स्वयं मूल अक्षराधिक मुक्त और अवतारों को साथ में लेकर ही वो यहाँ पे पधारते हैं, और तब पृथ्वी के ऊपर जो मनुष्य मुमुक्षु भक्त है उन्हें दिव्य पार्षद के साथ में रखते हैं और धर्म का स्थापन करते हैं। उपरांत सत्पुरुष का दुख जो है उसको टालते हैं और असुरों का नाश भी करते हैं। इसलिए भगवान के भक्त को भगवान का स्वरूप मूल अक्षर मुक्तों और अवतारों सहित पृथ्वी पर विराजमान होते हैं ऐसा समझना, उपरांत अन्य के आगे भी ऐसी ही बात करनी है। शिष्य पूछते हैं, कैसे भक्त की श्रीजी महाराज रक्षा करते हैं और कैसे भक्त की रक्षा नहीं करते हैं, वो कहो। गुरु जी कहते हैं, जिस भक्त ने श्री स्वामीनारायण भगवान का निश्चय महात्म्य सहित हो और सच्चे संत का तथा सच्चा सत्संगी का महत्व वो बहुत ही जानता हो, तो वो भक्त का जो कर्म यदि कठिन हो, काल यदि कठिन हो, तब भी श्रीजी महाराज उस भक्त की रक्षा करते हैं। और श्री स्वामीनारायण और उनके परम एकांतिक भक्त और सत्संगी का महात्मा जानने में यदि फेर हो, तो तेनी श्रीजी महाराज उसकी जो श्रीजी महाराज है वो रक्षा करे तो पण उसका अच्छा होता नहीं है। इसलिए महात्मा जानने में कुछ फर्क रखना नहीं, पूर्ण महात्मा जान लेना। शिष्य पूछ रहे हैं, जो महात्मा बिना सिर्फ निश्चय हो तो उसके क्या लक्षण हैं, और जिन्हें महात्मा सहित निश्चय हो उसके क्या लक्षण हैं? गुरु जी कहते हैं, जिन्हें सिर्फ निश्चय हो तो उसको ऐसे घाट होते हैं कि स्वामीनारायण तो मिले हैं, पर कल्याण होएगा कि नहीं होएगा, और जब हम गुजर जाएंगे तब भूत बन जाएंगे और राजा बनेंगे या देव बन जाएंगे या फिर नरक में जाएंगे, ऐसे संकल्प विकल्प उसको होते रहते हैं। तो ऐसे भक्तों को महात्मा बिना का निश्चय है ऐसा जानना, और जिन्हें महात्मा सहित निश्चय हो उसको तो ऐसा प्रतीत होता है कि
जिस दिन से मुझे श्री स्वामीनारायण का ज्ञाने सहित दर्शन हो चुका है और उनकी भक्ति पहचान में आ गई है, उस दिन से ही मेरा कल्याण तो हो चुका है। और जो जीव भाव से मेरा दर्शन करता है, मेरे गुण लेता है, मेरे वचन को मानता है, उसका भी कल्याण होता है। तो मेरे कल्याण में क्या संशय है? मैं तो आत्माराम और पूर्ण काम हूँ, और साधन जो भी करता हूँ वो तो श्रीजी महाराज की प्रसन्नता के लिए है। और ऐसा जो समझता है वैसे भक्त को हम महात्मा सहित निश्चय है ऐसा जानना। शिष्य पूछ रहे हैं असुर किसे जानना? भक्त के बारे में कल्याणकारी गुण किस प्रकार से आते हैं? तो गुरु जी कहते हैं महात्मा की ओथ लेकर जो धर्म के बारे में खोट करता है उसे असुर जानना। श्रीजी महाराज के स्वरूप में कल्याणकारी अनंत शुभ गुण बसे हुए हैं, इसलिए जिन्होंने श्री स्वामीनारायण का दृढ़ आश्रय किया है उनमें श्रीजी महाराज के अनंत कल्याणकारी गुण आके बस जाते हैं। शिष्य पूछते हैं श्रीजी महाराज तो अक्षरातीत है और मनवाणी थकी पर और सर्व को अगोचर है, उस सभी को प्रत्यक्ष देखते हैं, उसका क्या कारण है? गुरु श्री कहते हैं अक्षरातीत मन वाणी थकी भी पर और अगोचर ऐसे श्री स्वामीनारायण वो स्वयं कृपा करके ऐसा धारणा करते हैं कि इस पृथ्वी के ज्ञानी और अज्ञानी ऐसे जो मनुष्य वो सभी मुझे देख पाओ, ऐसा धारणा करके सत्य संकल्प ऐसे श्रीजी महाराज वो तो कृपा की वजह से ही मृत्यु लोक के सभी मनुष्य देख सके ऐसे वो हो जाते हैं। शिष्य पूछ रहे हैं जैसी श्रीजी महाराज के बारे में जो डर है, पास में बैठे हो और रहते हैं, ऐसे ही जब वो दूर होते हैं तब भी रहे, वो किस तरह से समझ में आता है? गुरु जी कहते हैं जिसके पास में मर्यादा रहती है वो दूर भी जाते हैं स्वयं, फिर भी वो रहती है, बनी रहती है। यदि श्रीजी महाराज का पूर्णपणे महात्मा उसको समझ में आया है तो वो महात्मा ऐसा समझना जो मूल अक्षरती पर ऐसे जो सहजानंद स्वामी स्वयं की इच्छा की वजह से ही अनंत कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय भी करते हैं और वो ब्रह्मांडों को अपनी तेज रूप आधार शक्ति के वजह से धारण करके रहे हुए हैं। ऐसे जो श्रीजी महाराज व्यतिरेक होते हुए अन्वय है और अन्वय होते हुए वो व्यतिरेक है और वही अणु अणु के प्रत्यय अंतर्यामी पने से वो विराजमान है। श्रीजी महाराज की दृष्टि के बिना एक तृण भी हलने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है और जो सुख दुख जीव को संबंध होता है वो तो एक पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायण के हाथ में है। श्री सहजानंद स्वामी घोड़े के ऊपर बैठे हो तब सब ऐसे जानते हैं कि ये जो घोड़ा है वो श्रीजी महाराज को धारण करके चल रहा है या तो उठाकर चल रहा है, वो तो घोड़ा का उन्होंने आधार लिया हुआ है। श्री स्वामीनारायण भगवान पृथ्वी के ऊपर बैठे हो तो भी वो पृथ्वी को आधार बनाया है। रात्रि में चंद्रमा या तो दिया या मसाल उसके प्रकाश के वजह से श्रीजी महाराज का दर्शन होता है। दिन में सूर्य के प्रकाश के वजह से सहजानंद स्वामी का दर्शन होता है। फिर भी श्रीजी महाराज स्वयं तो सूर्य चंद्र अग्नि वो सभी को प्रकाश देने वाले हैं, ऐसा अद्भुत उनका सामर्थ्य है। तब भी जीव के कल्याण के लिए वो मनुष्य जैसे होकर हमारे सामने आकर दर्शन देते हैं। ऐसी रीत से जो महात्मा समझता है तो जिस तरह से वो समीप बैठे हुए हैं और हमें डर रहता है, उसी तरह वो यदि दूर भी चले जाते हैं फिर भी ऐसा डर बरकरार हम रख सकते हैं। शिष्य पूछ रहे हैं कि भगवान का शरीर आत्मा और अक्षर है, तो आत्मा और अक्षर तो विकार रहित है और आत्मा को और अक्षर के बारे में कुछ भी उपाधि उनके अंदर है ही नहीं। जिस तरह श्रीजी महाराज माया से पर है, उसी तरह आत्मा और अक्षर भी माया से पर है।
ऐसे जो आत्मा और अक्षर वही श्री जी महाराज का शरीर कैसी रीत से है। तब गुरु जी कहते हैं आत्मा यानी कि ब्रैकेट में लिखा है मुक्त, अनंत मुक्त। आत्मा यानी कि मुक्त और अक्षर ये दोनों जिस श्री जी महाराज का जो शरीरपणा है वो तो व्यापपणु है और अधीनपणा है और असमर्थपणु है, उसके वजह से है। श्री जी महाराज तो स्वयं अंतर्यामी शक्ति के वजह से आत्मा और अक्षर के अंदर वो व्यापक ही है। ये दोनों तो व्याप्य है। श्री जी महाराज स्वतंत्र, स्वाधीन और अति समर्थ है। ऐसे आत्मा और अक्षर श्री जी महाराज के आगे अति परतंत्र, अति असमर्थ और उनके अधीन हैं। शिष्य पूछ रहे हैं मनुष्यत्व क्या है। गुरु से बोलते हैं 20 लक्षण ऐसे है आते हैं तब मनुष्यत्व कहलाता है। शिष्य पूछते हैं मुमुक्षुता किसको कहते हैं। गुरु जी कहते हैं पंच विषय, धन, स्त्री, देहाभिमान और स्वभाव का जो त्याग करता है तब मुमुक्षुता कहलाती है। शिष्य पूछते हैं ब्रह्मरूप कैसे हुआ जा सकता है। ऋषि कहते हैं श्री जी महाराज के साधर्म्यपणा को प्राप्त हो ऐसे जो मुक्त है उनका सेवन करते हैं तब ब्रह्मरूप बन सकते हैं। इसी के साथ में ये अध्याय 8वां यहाँ पे संपन्न होता है और अब हम चलते हैं अध्याय 9 की ओर। अध्याय 9 में श्री जी महाराज अमृत वचन श्री गुरु जी ने शिष्य को स्पष्ट समझाते हैं। ये बात इस अध्याय में आती है। शिष्य पूछ रहे हैं जीव अन्वयपने कैसे है और व्यतिरेकपने वो कैसा है, और ईश्वर अन्वयपने कैसे है तथा व्यतिरेकपने वो किस तरह से है। अक्षर ब्रह्म अन्वयपने कैसे है और व्यतिरेकपने से कैसे है, तथा पुरुषोत्तम नारायण को अन्वयपना कैसे जानना और व्यतिरेकपना किस तरह पहचानना। गुरु जी कहते हैं जन्म मरण का भोक्ता ऐसा जो जीव का स्वरूप है वो अन्वयपना जानना, और अछेद्य, अभेद्य, अविनाशी ऐसा जो जीव का स्वरूप है वो उसका व्यतिरेकपना जानना। ये जीव के बारे में बात हुई। अभी ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। विराट, सूत्रात्मा और अव्याकृत ये 3 शरीरों में एक रस बस होकर जो बरतता है वो मूल पुरुष, मतलब कि ईश्वर का, मतलब कि हमें समझना है मूल प्रकृति पुरुष या तो परात्पर शिव का अन्वय स्वरूप उसको जानना। फिर से कहते हैं विराट, सूत्रात्मा और अव्याकृत वो तीनों शरीर में एक रस बस होकर जो बरतता है वो मूल पुरुष का अन्वय स्वरूप जानना। विराट ये मूल पुरुष का स्थूल शरीर है। यहाँ पे वैराट नारायण मतलब महाविष्णु, और सूत्रात्मा जो प्रधान पुरुष ते मूल पुरुष का सूक्ष्म शरीर है। अभी यहाँ पे प्रधान पुरुष माने जो परात्पर शिव के रोम रोम के अंदर जो सदाशिव उत्पन्न होते हैं, मतलब कि शिव के जो 8 अलग अलग प्रकार के जो स्वरूप है जो उत्पन्न होते हैं, और उसमें जो अग्नि तत्व के 11 स्वरूप है उसको रुद्र कहते हैं। उसमें से जो रुद्र जिसके अंदर हम हैं उसको सदाशिव कहा है, तो उसकी बात कही है। तो प्रधान पुरुष अलग अलग नामों से पहचाने जाते हैं और वो परात्पर शिव के 8 अलग अलग प्रकार के स्वरूप है। अव्याकृत जो भूमा पुरुष ते मूल पुरुष का कारण शरीर है। अब ये जो भूमा पुरुष माने क्या, राधे कृष्ण, जो प्रधान पुरुष उसको कुछ सत्ता देते हैं और जो सुरभि गाय देते हैं उसको रखने के लिए जो धाम बनता है, सुरभि गाय को रखने का जो धाम है उसको जो गोलोक कहते हैं, तो वो है भूमा पुरुष। तब यहाँ पे कहा गया है कि अव्याकृत जो भूमा पुरुष यानी कि राधा कृष्ण, भूमा और पुरुष, पुरुष यहाँ पे कृष्ण है और भूमा जो शक्ति है वो राधा है। वो क्या है, वो मूल पुरुष का क्या है, कारण शरीर है। और अज्ञान रूप महाकारण जो श्री जी महाराज को न पहचानी वो उसका चौथा शरीर है। और पिंड ब्रह्मांड से पर षट उर्मी रहित सच्चिदानंद रूप होकर अक्षर की उपासना करते हैं
तो वो व्यतिरेक स्वरूप जानना। प्रकृति पुरुष आदि सभी अवतारों तथा सूर्य चंद्रादिक सर्व देवता, उसका जो प्रेरक वो तो मूल अक्षर का अन्वय स्वरूप जानना। और जो स्वरूप के बारे में पुरुष प्रकृति आदि कुछ भी रहता नहीं है, पर एक से सहजानी स्वामी ही रहते हैं, वो मूल अक्षर का व्यतिरेक स्वरूप है। फिर से पढ़ता हूं। प्रकृति पुरुष आदिक सर्वे अवतार, यहां पे सर्वे अवतार मतलब प्रकृति पुरुष आदिक सर्वे अवतार मतलब मूल प्रकृति पुरुष, फिर प्रधान पुरुष, फिर भूमा पुरुष, फिर उसके नीचे जो ब्रह्मा विष्णु महेश महाविष्णु वगैरह जो आते हैं, महाविष्णु फिर ब्रह्मा विष्णु महेश वगैरह जो आते हैं, फिर जो अपने ये प्रजापति है जो यम है, राक्षस है, दानव है, वो जो सभी अलग अलग जो कोटि आती है, वो सभी कोटि, मानव है, पशु है, पक्षी है, जो सभी कोटि जो आते हैं, तो पुरुष प्रकृति पुरुष आदि सभी अवतार तथा सूर्य चंद्र आदि सभी देवता, जिन सभी का जो प्रेरक वो तो मूल अक्षर का अन्वय स्वरूप है। और जो स्वरूप के बारे में पुरुष प्रकृति आदि कुछ भी रहता नहीं है, पर वो एक से सहजानंद स्वामी ही बसते हैं, वो मूल अक्षर का व्यतिरेक स्वरूप है। बद्ध जीव और मुक्त जीव, ये दोनों के हृदय में जो साक्षी रूप में रहे हैं, मतलब यहाँ पे उन्होंने माया के अधीन जो जीव है उसकी भी बात करी है, और माया से मुक्त हो चुके हैं उसको मुक्त जीव कहा है, उसकी भी बात करी है। मतलब कि दोनों प्रकार के जीवों के हृदय में जो साक्षी रूप होकर बसे हुए हैं, और बद्धपणु और मुक्तपणु जिसको स्पर्श नहीं होता, उपरांत ईश्वर के, मुक्तों के और अक्षय के हृदय में भी साक्षी रूप बसे हैं, और फिर भी वो उन सभी की उपाधि से रहित है, मतलब कि अस्पृश्य है, वितराग है, या तो साक्षी रूपे है। ऐसे ही सहजानंद स्वामी का अन्वय स्वरूप है। और जीव, ईश्वर और अनंत कोटि मुक्तो उपरांत मूल अक्षर से पर जो अक्षरातीत स्वरूप, जो स्वयं पुरुषोत्तम नारायण का, वो व्यतिरेक स्वरूप जानना। तो ये अन्वय और व्यतिरेक की बात हुई है कि सब में बसते हुए भी वो जो वितराग का स्वरूप है, जो स्पर्श रहित है, जो डिटैचमेंट में ही रहते हैं, उसकी बात यहाँ पे की है। मतलब बद्ध जीव और मुक्त जीव दोनों के अंदर हृदय में वो साक्षी रूप में बसे हुए हैं। शिष्य पूछ रहे हैं, चार वाणी का रूप हमें बताओ। तो गुरुजी कहते हैं, श्री जी महाराज के धाम, गुण और ऐश्वर्य उसका ही प्रतिपादन करते रहना, और उनके चरित्र का ही वर्णन करना, आत्मा का विवेक करके ही हमें देखना, उपरांत जीव, ईश्वर, माया, अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म जैसे सहजानंद स्वामी, उनके भेद को अलग अलग करके समझना और समझाना, उसको परावाणी कहते हैं। अभी देखो, ये फिर से मैं उसको दोहराता हूं कि परावाणी किसको कहते हैं। चार वाणी है, परावाणी है। तो श्री जी महाराज के धाम, गुण, ऐश्वर्य उसका ही जो प्रतिपादन करना और उनके चरित्र का वर्णन करना, आत्मा का विवेक करके ही वर्तन करना, मतलब हमारा वर्ताव ऐसा ही होना, उपरांत जीव, ईश्वर, माया, अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म जैसी सहजानंद स्वामी, उनके भेद को अलग अलग समझना और समझाना, उसे परावाणी कहते हैं। मतलब को जो तत्व को पहचान चुका है कि माया के जीव के अंदर में अक्षर पुरुषोत्तम का क्या स्वरूप है, कैसा स्वरूप है, और माया से पर जो अक्षरातीत ऐसे जो पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामीनारायण जो पूर्ण काम है, वो अक्षरधाम के तख्तोताज पे विराजमान है, उसका यथा योग्य विवरण करना, समझना, खुद भी समझना और समझाना, उसको परावाणी कहते हैं। पदार्थ को और विषय को अंधधंध जो समान करके दिखाते हैं और उसको कुछ भी समझ में आता नहीं है, उसे पश्यंती वाणी कहते हैं। पदार्थ और माइक विषय के अंदर भ्रांति सहित वो यथार्थपणे वो
हमें कहकर दिखा देवे उसे मध्यमा वाणी कहते हैं, और जो माइक पदार्थ को और विषय को विवेक सहित यथार्थपणे अलग अलग करके दिखा देते हैं उसको वैखरी वाणी कहते हैं। और इसी रीत से वाणी के 4 रूप यहाँ पे है। मतलब ये जो है ना, ये महाराज ने यहाँ पे ऐसा गूढ़ बात बताई है को उसको हम 10 बार सुनेंगे, उसका कई बार चिंतन करेंगे, और हमारे ऐसे जो सत्पुरुष है उसके सामने बैठकर उसका क्लैरिफिकेशन करके यदि हम उसका घन अर्थ में जाएंगे तो ये बात समझ में हमें आएगी। ये थोड़ा बोलते हैं ना, टेक्निकली थोड़ा अटपटा बात है, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। शिष्य पूछ रहे हैं मनोमय चक्र वो क्या है और उसकी जो धारा है वो किस तरह से समझनी। तो गुरु श्री कहते हैं कि चक्र वो तो मन को जानना, और उसकी धारा तो 14 इंद्रिया जाननी। अभी जो धारा और चक्र वो तो मन को जानना ऐसा बताया है, और इंद्रिय रूप जो मन की धारा वो जिस जिस स्थान पे स्थिर हो जाती है और मन के संकल्प विकल्प बंद हो जाते हैं और शांति होती है, ऐसे सत्पुरुष जहां बसते हैं वहां पे ही नैमिषारण्य क्षेत्र जानना। और उस स्थान पे जप तप व्रत ध्यान पूजा आदि सुकृत का जो आरंभ करता है वो दिन भर दिन वो वृद्धि को प्राप्त होता है। और ऐसा जो नैमिषारण्य क्षेत्र वो जिस स्थान पे है वहां पे श्री सहजानंद स्वामी परम एकांतिक भक्त रहते हो तो वो उसका स्थान है ऐसा जानना, और वहां पे कल्याण को इच्छना है और वहां ही अति दृढ़ मन करके वहां पे बसना है। शिष्य पूछते हैं जिन्होंने तामसी कर्म बहुत किए हो और जिसके हइये में कलयुग बरतता हो तो वो कौन से उपाय के वजह से वो टल सकता है या नहीं टल सकता है। गुरु जी कहते हैं जो श्री जी महाराज और उनके संत के वचन के बारे में अति दृढ़ श्रद्धा होती है और दृढ़ विश्वास उनके अंदर संपन्न हो जाता है तो वो कैसे भी तामसिक कर्म उसने किए हो फिर भी ऐसे कर्म का नाश हो जाता है और कलयुग के धर्म को मिटाकर वो सतयुग के धर्म में वो प्रवर्तमान हो जाता है। इसीलिए अति सच्चे भाव से जो सत्संग करता है उसको तो किसी भी जात का दोष जीव में रहता नहीं है और देह होते हुए ही वो ब्रह्मरूप हो जाता है। मतलब यहाँ पे भरत भाई ने कहा था, अभी बीच में कुछ उन्होंने सत्र लिया था उसमें वो बता रहे थे कि यदि दृढ़ता से मूर्ति को अखंड धारण करके उनको सर्वकर्ता हर्ता मान के यदि हम स्वामीनारायण की धुन सुबह उठते ही आधा घंटा हम ये धुन कर लेते हैं तो हमारे सभी संचित प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाते हैं। ये बात जो बताई थी भरत भाई ने वही बात का यहाँ पे प्रतिपादन किया है कि सब कुछ जो है वो सुबह में हमने कीर्तन किया, चिंतन मनन किया, ध्यान किया, दर्शन किया तो वो सब खत्म हो जाता है पूरे दिन भर का। शिष्य पूछते हैं धर्म वाले और अधर्मी कैसे पहचाने जाते हैं और जीव का कल्याण किस तरह होता है। गुरु श्री कहते हैं इस संसार के अंदर धर्म वाले और अधर्मी ऐसे दोनों प्रकार के व्यक्ति है। उसमें जो धर्म वाले हैं वो तो चोरी, परस्त्री का संग, चाड़ी चुगली, वो सर्व पाप का त्याग करके श्री जी महाराज से डर के धर्म मर्यादा में ही चलते हैं और उसका सभी विश्वास भी करते हैं। उसका वचन जो है सभी को सत्य लगता है। ऐसे जो धर्म वाला होता है उसे सच्चे संत का समागम पसंद आता है। और जो कामी है, क्रोधी है, लोभी है, लंपट है, धर्मामृत, निष्काम शुद्धि और शिक्षापत्री के मुताबिक नियम में नहीं रहता हो, ऐसे सत्संगी और साधु को झूठा जानना। इसलिए जिन्होंने अपना स्वयं का कल्याण यदि इच्छना हो उसको ऐसे अधर्मी का संग करना नहीं, पर धर्म के मार्ग पर चलकर सच्चे सत्पुरुष को पहचान कर उनका समागम करना, तो निश्चय वो जीव का कल्याण होता है और उसमें कोई भी संशय नहीं है। शिष्य पूछते हैं अंतर्दृष्टि और बाह्य दृष्टि किस तरह से समझनी है। तो गुरु श्री कहते हैं श्री जी महाराज और उनके परम एकांतिक संत
सामने दृष्टि वही अंतर्दृष्टि है। श्रीजी महाराज को दूर और परोक्ष समझते हैं, वो बाह्य दृष्टि है। जो पुरुष ऐसा समझता हो जो मेरे चैतन्य के अंदर से सहजानंद स्वामी सर्वदा विराजमान है, जिस तरह देह में जीव है उसी तरह मेरे जीव के अंदर जो श्रीजी महाराज है वो बसे हुए हैं, और मेरे जीव है वो तो शरीर है, और जी सहजानंद स्वामी तो मेरे जीव का शरीर ही है, और वो मेरे अंदर अखंड विराजमान है, ऐसा समझता है, वो तो सत्पुरुष के माध्यम से श्रीजी महाराज और उनके साधर्मपणा को प्राप्त कर चुका है। ऐसे अनंत कोटि मुक्त अणु मात्र भी उससे दूर नहीं है। और ऐसी रीत के जो संत होते हैं वो तो जैसे श्रीजी महाराज के मुक्त है उसके समान है। ऐसे भक्त का दर्शन हुआ तब ऐसा जानना कि मुझे प्रत्यक्ष श्री सहजानंद स्वामी का दर्शन हुआ है। यदि ऐसी समझन वाला जो संत है वो तो कृतार्थ है, और जिन्हें ऐसी समझन तो अभी तक आई नहीं है, और वो जो संत के समागम में पड़ा रहता है, और वो संत नित्य यदि उसको 5 खाखड़ा भी मारे फिर भी वो अपमान को सहन करता है, और संत का समागम को रख ही नहीं सकता। ऐसे प्रथम संत जो कहे हैं उसके मुताबिक उसे भी जानना, और जैसी प्राप्ति उस संत को हुई है ऐसी ही जिस संत समागम में जो पड़ा रहा है उसको भी ऐसी ही प्राप्ति होती है। शिष्य पूछते हैं 5 खाचड़ा मारे वो क्या है? तो कि गुरु से कहते हैं पंचवर्तमान की आज्ञा स्वयं भी पालन करे, और शिष्य के पास में भी उसको समझा बुझा कर भी उसका पालन कराते हैं, या तो धाक धमका कर भी उसका पालन कराते हैं, तो उसको ही 5 खाचड़ा मारे ऐसा कहा गया है। तो इसी के साथ में ये अध्याय 9वां यहाँ पे संपन्न होता है। अभी हम चल रहे हैं अध्याय 10वां में। अध्याय 10वां में शिष्य के प्रश्न के उत्तर में गुरु श्री ने सहजानंद स्वामी को अमृत वचन कहे हैं, ये बात इस अध्याय में आती है। शिष्य के प्रश्न के उत्तर में गुरु श्री ने सहजानंद स्वामी के अमृत वचन बताए हैं, ये बात इस अध्याय में आती है। शिष्य पूछ रहे हैं जिन्हें श्री स्वामीनारायण भगवान का परिपक्व निश्चय हो चुका हो उसको कैसी जात का घाट होता है। अभी ये जो है ना, ये हर एक भक्त की विटंबना है कि मैं ये स्थिति में हूं, मुझे मेरे अंतर में और बाह्य में मैं श्री स्वामीनारायण भगवान को अखंड रखता हूं, फिर भी ये माइक विचार और माइक घटनाएं या तो माइक प्रसंग मेरे जीवन में क्यों होता है। तो वो बात यहाँ पे उसका स्पष्टीकरण गुरु से दे रहे हैं। जिन्हें परिपक्व निश्चय होता हो उसके तो मन में ऐसा ही रहते हैं कि मुझे तो सभी प्रकार की प्राप्ति हो चुकी है, और जहां पे प्रत्यक्ष श्री स्वामीनारायण भगवान है वहां ही अक्षर और मुक्त तो मूर्तिमान बसे हुए हैं, और जो सत्संगी भाई बहन हैं वो तो जैसे अक्षरधाम के मुक्त है वैसे ही मेरे सन्मुख है, और मैं तो देह होने के बावजूद भी पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायण और उनके मुक्त को प्राप्त कर ही रहा हूं, और स्वयं के हृदय में अति आनंद बरत रही है। इस रीत से जिसके अंतर में जो प्रतीति होती है उसको परिपक्व निश्चय जानना, मतलब कि हम क्षति देह से अक्षरधाम में ही हैं, और अक्षरधाम में जो स्थिति है, अक्षरधाम में जो धामी और मुक्त जो बसे हुए हैं मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम हैं, वो इसी वक्त भी मेरे साथ है। जैसे हमने शुरुआती वचनामृतों में या तो शुरुआती अपने स्वामीनारायण भागवत में कहा था ना कि मेरे साथ में बहुत सारे सत्पुरुष और उनकी फौज और अक्षर मुक्त सभी मेरे साथ में आगे पीछे मेरे साथ में चल ही रहे हैं। संपूर्ण लश्कर जो है, हाँ, संपूर्ण सेना स्वामीनारायण भगवान की संपूर्ण सेना स्वामीनारायण भगवान के साथ मैं जहां भी जाता हूं मेरे आगे पीछे मेरी रक्षा में हाजिर है। मैं कहां पे भी जाता हूं, आता हूं, उठता हूं, बैठता हूं, बातें करता हूं, तो वहां पे अक्षरधाम है ऐसा करके मैं जाता हूं, तो मेरी रक्षा हो ही रही है। ऐसे हम बरते तो हमारा निश्चय परिपक्व है। ये बात यहाँ पे आई।
शिष्य पूछ रहे हैं कि जिन्होंने अपना मन को जीत लिया है, उसने सभी जगत को जीत लिया है, तो मन जीत लिया है वो कैसे हमें समझ में आए? हाँ, जय स्वामी नारायण। आवाज आ रहा है ना? बरोबर आ रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो शिष्य ने यहाँ पे पूछा है कि स्वयं के मन को जीत लिया है, वो प्रतीति उसकी कैसे आएगी? तो गुरु जी कहते हैं, हाँ, हाँ, तो यहाँ पे गुरु श्री उत्तर दे रहे हैं कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पंच विषयों में से इंद्रिय और अंतःकरण यदि वापस मुड़ जाते हैं और श्री सहजानंद स्वामी की मूर्ति में ही रहते हैं, स्थिर हो जाते हैं, ऐसी रीत से जिन्होंने पंच विषय का त्याग अति दृढ़पणा से जिसका हो चुका है, उसका उन्होंने मन को जीत लिया है, ऐसा जानना। जो विषय के ऊपर जो प्रीति होती है, जिन्हें विषय के ऊपर प्रीति होती है, उन्होंने मन जीता भी हो तब भी जीता नहीं है, ऐसा जानना। श्री जी महाराज की जो व्याख्या है, मन को जीता किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ जिसने मन को जीत लिया है उसको मन को जीता ऐसा नहीं कहा है, लेकिन जिसने पंच विषयों का त्याग अति दृढ़पणे से जिसका हो चुका है और वो हमेशा श्री सहजानंद स्वामी की मूर्ति में ही रहता है, उसके इंद्रिय अंतःकरण उसमें ही रस बस है, मतलब फोकस उनका पूरा जो हृदय में बसी जो मूर्ति है उसके ऊपर ही है, उसको ही मन जीता ऐसा कहा जाता है। किसी ने मन को ट्रांसेंड कर लिया तो बोला मन जीता हुआ, ऐसा नहीं कहा जाता। मतलब कि यहाँ पे प्रथम का प्रथम जिसका सिद्ध हो गया है उसको ही मन जीता कहा गया है। तेल धार रूप में तीनों अवस्था के अंदर वो मूर्ति को अखंड देखता है या तो महसूस करता है या तो उसके ही निश्चय में वो बसा हुआ है, रस बस है, तो उसको ही मन जीता कहा जाता है। बहुत बढ़िया डेफिनेशन दी है ये। हम अपने शब्दों के उपयोग से या तो शब्द का समीकरण से हम उसका निचोड़ नहीं ला सकते हैं। यहाँ पे श्री जी महाराज की जो सब भाषा है बहुत ही अलग प्रकार की है, उच्च प्रकार की। शिष्य पूछते हैं विषय की निवृत्ति किस प्रकार से होती है तथा श्री जी महाराज का महिमा किस तरह से हमें समझना है। तो गुरु जी कहते हैं, एक तो विषयों की निवृत्ति का कारण है आत्मनिष्ठा। अभी आत्मनिष्ठा के ऊपर ही भरत भाई ने कल या परसों बहुत कुछ बताया था, आत्मनिष्ठा क्या है। और दूसरा महात्म्य सहित जो प्रकट श्री सहजानंद स्वामी का ज्ञान है वह है। उसमें आत्मनिष्ठा तो इस तरह से हम देखते हैं कि मैं चैतन्य हूं और ये देह तो जड़ है, मैं शुद्ध हूं और देह तो नरक रूप है, मैं तो अविनाशी हूं और देह तो नाशवंत है, मैं आनंद रूप हूं और देह तो दुख रूप है। इस रीत से जब देह से परे स्वयं के आत्मा को सभी प्रकार से अलग समझता है, तब वो देह को अपना रूप मनाता नहीं है और विषय में वो प्रीति कर ही नहीं सकता। अभी ये यहाँ पे क्या है कि विषय में प्रीति वो करता नहीं है, वो स्वयं का निष्ठा है। और श्री स्वामीनारायण भगवान का महिमा इस तरह से जो चिंतन मनन करता है कि मैं तो आत्मा हूं और मुझे जो प्रत्यक्ष सहजानंद स्वामी मिले हुए हैं वो तो परमात्मा है और उन्होंने मेरे आत्मा के अंदर अखंड विराजित हो चुके हैं और श्री स्वामीनारायण का एक निमिष मात्र का भी दर्शन, उसके ऊपर अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो विषय सुख है वो सभी को परे जाके हम एक साइड में उसको फेंक दे और श्री स्वामीनारायण के एक रोम में जितना सुख रहा है उतना सुख तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के विषय सुख को जमा भी एक जगह पे कर दे, फिर भी उसके कोटि में भाग की तुलना में भी नहीं आ सकते हैं। ऐसे से सहजानंद स्वामी मुझे मुक्त द्वारे मुझे प्रत्यक्ष मिले हुए हैं और उनको रखकर मैं नरक के कुंड जैसे ये विषय सुख में मैं क्यों इच्छा करता हूँ, और विषय से तो सिर्फ और सिर्फ दुख रूप ही है। तो जिन्होंने इस रीत से अपनी समझ को व्यवस्थित गठित किया हुआ है और ऐसे ही होश में वो रहता है और विषयों के सुख का जो त्याग कर चुका है
उसे विषय में प्रीति होती ही नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, उसे विषय में प्रीति होएगी ही नहीं, क्योंकि वो ज्ञान में स्थिर हो चुका है और उसको मालूम है कि अनंत ब्रह्मांडों का विषयों का सुख भी जमा कर ले तो वो अक्षरधाम के सुख के सामने उसके कोटि में भाग जितना भी नहीं है। और ये सारे विषय सुख तो एक क्या है, नरक का द्वार है, तो उसका त्याग करता है समझकर, ज्ञान से, होश से, तो ही वो उससे मुक्त हो रहता है। शिष्य पूछ रहे हैं अलौकिक दृष्टि किस तरह से प्राप्त होती है? तो गुरु जी कहते हैं नेत्र और श्रोत्र के विशेष नियम में जो रखता है और जहां ग्राम्य वार्ता होती है वहां तो उस क्षेत्र की वृत्ति द्वारा वो उसमें बह जाता है और उनको सुनकर वो सभी सर्व जो ग्राम्य शब्द है वो भजन में बैठ जाते हैं। और जब भजन में बैठते हैं वैसे ही तुरंत उसको याद आ जाते हैं, उसकी स्मृति आ जाती है और उसकी जो फटी टूटी जो दृष्टि है उसमें उसने जो रूप देखा है वो तो सभी भजन करते समय उसको याद आ जाती है। ये इसके वजह से दोनों इंद्रियों को अतिशय नियम में रखना है। मतलब कि हमारी स्मृति की आदत इस तरह से होनी चाहिए कि जहां भी ग्राम्य वार्ता हो रही है वहां से हमें क्या करना है, हमारी संपूर्ण वृत्ति को खींच लेना है और कान जैसे बंद हो गए उसी तरह बैठना है। जैसे हम मूर्ति बन गए, अभी मूर्ति के सामने कुछ भी होता है तो उसको कुछ असर होता है। तो यहाँ पे जो बचपन में जो हम खेल खेलते थे ना, रेडी मूर्ति का खेल, तो वो बोल रहा है लेकिन हम मूर्ति होके बैठ गए, खाली उसको पता भी नहीं चले कि हम मूर्ति होके बैठ गए हैं, खाली हम हमारी दृष्टि घुमाते हैं और हमारे अंदर तो मूर्ति का स्वामीनारायण का मंत्र चल रहा है, उसको बाहर कुछ प्रतीति नहीं है और बड़बड़ करके चला जाता है और कुछ भी बहाना करके, जैसे पहले बताया था, बहाना करके उधर से निकल जाने का या तो बाय बाय कह देने का। अब इसी स्वामीनारायण भगवान की मूर्ति को रखकर अन्य पदार्थ में जो जो बह जाते हैं उनको उपदेश देना कि हे मूर्ख, तू ये प्रकट से स्वामीनारायण की मूर्ति के बिना अन्य रूप को तू देख रहा है और सूत्र का उपयोग करते हैं, उसको बोध देना कि जो सहजानंद स्वामी की जो बातें हैं उसके बिना अन्य सभी बातें यदि वो तू सुनता है तो उसमें तुझे क्या प्राप्त होगा, प्राप्ति क्या होगी ये सब सुनकर। अभी तो तुझे सिद्ध दशा आई भी नहीं है, हाँ, और जैसा जैसा तू चिंतन करेगा वैसा वैसा तुझे तत्काल मिलता जाएगा। तो क्यों तो फुकट में ये सब वलखा मार रहा है और स्वामीनारायण भगवान को किस कारण की वजह से तो उसको साइड में रख देता है। कुछ भी अल्प विषय तुझे प्राप्त होगा भी तो उसके पाप के वजह से तू जमपुरी में मार खाते खाते उसका अंत भी नहीं आएगा। विषय सुख को भोगने को जाएगा, अल्प विषय है उसके सुख को भी भोगने को जाएगा, तो जमपुरी में मार खाते खाते उसका अंत भी नहीं आएगा। इस रीत से सभी इंद्रियों को उपदेश देना और ऐसा कहना कि तू प्रगट स्वामीनारायण भगवान की मूर्ति में एकाग्र यदि होएगा तो उसमें से तुझे सिद्ध दशा प्राप्त हो जाएगी और तत्पश्चात जो जो ब्रह्मांड में बातें होती होएगी वो तू सहजता से सुन सकेगा। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और अन्य अवतारों के जैसे रूप को यदि तू इच्छा करेगा तो तू ऐसे रूप को भी प्राप्त कर लेगा और भजन करते करते देह होते हुए भी सिद्ध दशा को नहीं प्राप्त करेगा तो देह गिरने के बाद में तो सिद्ध दशा को प्राप्त होएगा। पर सिद्ध दशा आए बिना, रूप को देखे बिना तथा ग्राम्य शब्द को सुनकर बुद्धि अतिशय भ्रष्ट हो जाएगी और उसमें से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इस रीत से 14 इंद्रियों को उपदेश देकर एक सी सहजानंद स्वामी की मूर्ति में उसको स्थिर करना और जो ऐसा करता है उसे अलौकिक दृष्टि प्राप्त होती है। मतलब यहाँ पे कितना निषेध किया है या तो यहाँ पे कितना एक बाउंड्री बनाई है, एक मर्यादा का यहाँ पे दायरा दिया हुआ है कि ये सारी बातें हमें खुद सजग होकर करनी है। यदि कभी स्वप्न में भी उल्टा सीधा स्वप्न हम देख लेते हैं तो सुबह में हम विचलित हो जाते हैं। तो यदि
जो 14 इंद्रियों के माध्यम से हमने ग्राम्य वार्ता की है, या तो विषय सुख में हम रसबस हो गए हैं, तो नरक में उसके वजह से कितनी यातनाएं होएगी, उसका ही बोध इंद्रियों को दे देकर उसमें से बाहर निकालना है सजगपना से। हमें इतना सजग होना है, इतना सजग होना है, इतना सजग होना है, जिस तरह हमारे किचन के अंदर यदि एक बिल्ली आ भी गई एकदम छुपे हुए पैर से, फिर भी हमारी चेतना कितनी अवेयरनेस है कि अरे बिल्ली गई ऐसा लगता है, फट से उठ के हम किचन में जाते हैं और उसको निकाल के भगा देते हैं। ठीक उसी तरह हम सजग रहकर वो जो बिल्ली घुसती है 14 इंद्रियों के द्वार से, उसको फटाक से बोलने का, चल भाग यहां से, तेरा काम नहीं है, चल भाग, यहाँ पे तो मूर्ति चाहिए, स्वामीनारायण मंत्र चाहिए, भगवान का महिमा चाहिए, तू नहीं चाहिए, वो बिल्ली यहाँ पे नहीं चाहिए। हम उठ के सब कुछ काम छोड़ के उठ के भगाते ना उसको, किचन में से कैसे भगाते। ठीक उसी तरह हमारे अंदर जब वो व्याप्त होने की शुरुआत करता है 14 इंद्रियों में से कोई भी, तो उसको तुरंत बोलने का, चल भाग यहां से, तेरा काम यहाँ पे नहीं है, अभी तेरा काम खत्म। तो ही हम ऐसा महासुख और महा आनंद ले पाएंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न है सच्ची में, बोले तो शिष्य ने ऐसा बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछे हैं, ऐसा लगता है कि ऐसा तो वचनामृत में भी नहीं आया है। वैसी बातें सब यहाँ पे आई है, इतनी क्लैरिटी तो वचनामृत में भी नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे इतना स्पष्ट रूप से ये आनंदानंद स्वामी ने समझाया है कि धन्य धन्य हो सकता है। ऐसा लगता है कि वाह वाह, क्या क्या दे दिया हमको, कितने सारे अस्त्र शस्त्र दे दिए अक्षरधाम में पहुंचने के लिए। शिष्य पूछते हैं, श्रवण, मनन, निधिध्यास और साक्षात्कार किसको कहते हैं? तो गुरु जी कहते हैं, श्रोत्र के वजह से बात सुनते हैं उसको श्रवण कहते हैं। आंख के वजह से जो रूप देखते हैं, जीभ के वजह से जो स्वाद लेते हैं, नाक के वजह से जो गंध लेते हैं, त्वचा के वजह से जो स्पर्श लेते हैं, और सभी को हम श्रवण कहते हैं। मतलब कि जो इंद्रियों से, पंच कर्मेंद्रियों से जो हम ग्रहण करते हैं, उसको क्या कहते हैं? श्रवण कहते हैं। और उसकी जो वार्ता है, जो हमने सुनी हो, उसका श्रवण किया हो, तो उस बातों को भी मन के वजह से हम जो विचार करते रहते हैं, उसी अनुभव का हम जो सोच विचार करते रहते हैं, और जितनी बातों का हम त्याग करने योग्य हो उतना का हम त्याग कर लेते हैं, और जितनी बातें ग्रहण करने जैसी हो और योग्य हो उतनी ही हम ग्रहण करते हैं, तो उसे हम मनन कहते हैं। एक तो जो हम सुनते हैं तो उसको श्रवण कहा है। दूसरा, जो सुना हुआ है उसमें से जो त्याज्य है उसको बाहर फेंक देते हैं, और जो श्रवण योग्य है उसको वापस उसकी गहराई से उसका चिंतन मनन करते हैं, उसको कहते हैं, उसको हम ग्रहण भी करते हैं, और उसको हम हमारे जीवन में अप्लाई करने के लिए, उसमें ओतप्रोत होने के लिए प्रयत्न करते हैं, उसको मनन कहते हैं। जो मन से होता है उसको मनन कहते हैं। और वह मनन करने से उसको हम जीव के अंदर हम उतार देते हैं, और जो बात निश्चय करके मन ने ग्रहण की हो और उसको रात दिन हम उसको याद करते रहते हैं और उसका अभ्यास रखते हैं, उसको निधिध्यास कहते हैं। मतलब जिसका श्रवण किया, जो ग्रहण योग्य है उसका मन से चिंतन मनन किया, और जिसका चिंतन मनन किया है उसका रात दिन हमने उसकी प्रैक्टिस की, तो जो प्रैक्टिस की उसको हम निधिध्यास कहते हैं। और वो जैसी है वैसी उसका चिंतन मनन किए बिना ही सभी मूर्तिमान के माफिक अथति इति उसको वापस याद करके जो हम उसका वापस स्मृति पटल के ऊपर उसको लाते हैं, उसके अनुभव को, तो उसको साक्षात्कार कहते हैं। तो जो आदत, अच्छी आदत हम बार बार करते हैं और उसको हम स्मृति पटल में याद करके कि बचपन में मैं ऐसे मंदिर में जाता था और वहां पे पानी का लोटा नहीं रहता था, तो बाजू में से कैसे भी करके कुछ छोटा सा पत्ता का, पान का कुछ ऐसा संपुट बनाकर वो उसमें पानी भर के मैं शिवलिंग पे डालता था। ये जो आदत है जो मैंने बचपन में हमेशा की, कि सुबह में उठे, नहाए धोए और अच्छे वस्त्र पहन के सबसे पहले शिव मंदिर में गए, ये जो उसकी जो स्मृति है, जो अच्छे कर्म है, ग्रहण करने योग्य जो क्रियाएं मैंने अपने अंदर डेवलप की है, वही चीज आज मुझे घर के अंदर हाजरा हजूर मिली है। कि जो कभी शिवलिंग पे करते थे वो आज हम मूर्तिमान जो श्री स्वामीनारायण भगवान है वहां पे करते। तो मानसी में भी यदि वो जल हम
उसी संपुट से हम उसके ऊपर उनका अभिषेक करते हैं तो क्या हो गया, उसको साक्षात्कार कहते हैं। कि बैठे बैठे हमने बचपन की वो आदत को रिकॉल किया और उसका जो संपुट है वो संपुट में पानी भर के हमने अभी जो विराजमान जो स्वामी भगवान है उनका अभिषेक किया, तो उसको ये क्या कहते हैं, उसको साक्षात्कार कहते हैं। कि ये चीज मैंने भूतकाल की अच्छी आदत का उपयोग करके मैंने इस वक्त प्रेजेंट मोमेंट में उसका उपयोग करके उनका अभिषेक किया। पर मनन और निधिध्यासन ये दोनों किए बिना लाखों सालों तक यदि दर्शन श्रवण करते रहे तो भी साक्षात्कार नहीं होता है। तो चिंतन मनन और निधिध्यास मतलब कि चिंतन मनन किया और उसको मैंने प्रैक्टिकल में अप्लाई किया, और जो अप्लाई करने से जो आदत बन गई कि नहाए धोए कि सबसे पहले चलो मंदिर में, और मंदिर में जाके सबसे पहले उनके ऊपर हम अभिषेक करते हैं, ये जो आदत की जो स्मृति है उसको भी मैंने मानसी पूजा में उसका आविष्कार करके मैंने आज के स्वामीनारायण भगवान के ऊपर उनका अभिषेक किया, तो उसको कहते हैं कि साक्षात्कार हुआ। और ये हमने नहीं किया है। मनन और निधिध्यासन मतलब कि आदत उसकी हमने डाली ही नहीं है, तो वो स्मृति में क्या आएगी, वो मानसी में आएगी कैसे? या तो फिर हमने आज उसको डेवलप की कि आज मैं अच्छे शुद्ध से शुद्ध कमल के फूल के अंदर जो मैं पानी डालता हूं, जो पानी कभी उसकी पकड़ियों को स्पर्श नहीं करता है, और उस कमल के फूल के ऊपर का पानी का मैं अभिषेक करता हूं, तो भी क्या हो गया, श्रीजी महाराज का अभिषेक हो गया, प्रेजेंट मोमेंट में हो गया। और ऐसी आदत मैंने हर रोज डाली तो क्या होएगा, हम जब भी याद करेंगे तो वो जो अनुभव है वो अनुभव हमारे स्मृति पटल पे आ जाएगा। अरे कल मैंने तो लाल कमल लिया था, आज मैंने पिंक कमल लिया है, परसों मैंने पीला कमल लिया था। तो वो जो कमल के अंदर पानी डाल के उसका संग्रहित करके, क्योंकि पानी तो पंखड़ियों में लगने वाला नहीं है, वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा, और संपूर्ण पानी का उसका उनके ऊपर मैंने अभिषेक किया। तो बैठे बैठे यदि रात को हम सो भी गए, नींद नहीं आती है, फिर भी यदि हमने अभिषेक चालू कर दिया तो क्या हो जाएगा, हमारा वो ही साक्षात्कार हो गया। ये हमारी आंखें खुली नहीं है पर नींद नहीं आती है करके हम सचेत है पर आंख खुली नहीं है, फिर भी हमने ये क्रिया कर दी, उसी को साक्षात्कार कहा है। कि जो मेरी आदत है कि जब भी मैं होश में आता हूं तो मैं उनका अभिषेक करता हूं, तो ये है साक्षात्कार। तभी ऐसा नहीं समझने का नहीं अभी तो टेरा पड़ गया, अभी तो भगवान सो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे अंदर वो आदत हो गई है, वो आदत मेरे अंदर ऐसी रसबस हो गई है कि नींद टूटी नहीं और मैंने वो अभिषेक किया नहीं, तो वही याद आएगा, वही याद आएगा। अरे आज तो मैंने बहुत बढ़िया ऐसा कमल का फूल लिया है, उसके अंदर पानी है, बहुत शुद्ध पानी है, अच्छे मानसरोवर का पानी है, हाँ, और उसका मैंने अभिषेक किया। तो ये है साक्षात्कार। तो साक्षात्कार की बात यहाँ पे उन्होंने बताई है कि ऐसा ही स्थिति यदि हमारी होएगी जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार सभी का सम्मिश्रण होएगा और जो अनुभव बनेगा, और उस अनुभव को मानसी पूजा में कन्वर्ट करके हम बार बार उसको दोहराते रहेंगे, तो उसको कहते हैं साक्षात्कार। तब क्या हो गया, मेरी आंखें बंद है, मैं सो भी रहा हूं, फिर भी क्या हो गया कि श्री जी मेरे सन्मुख है और मैं उनका अभिषेक कर रहा हूं, तो साक्षात्कार हो गया। तो वो बात यहाँ पे कही है। बढ़िया। तो अभी जो है, जो 11वां जो है, बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय, धाम धामी मुक्तो की जय जय जय, सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय, जय सच्चिदानंद। जय जय, बहुत बढ़िया 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 एकदम। बहुत अच्छा। ये क्या होता है, सामने ऐसे दिव्य भक्त, रसबस हुए भक्त जो अष्ट प्रहर में महाराज की सेवा शुश्रूषा करते हैं, तो उसमें से ये सब प्रकट होता है। जैसे ही उस महाराज की मूर्ति को याद करते हैं ना, वैसे ही सब आपकी संपूर्ण सेवा मेरे सामने तादस हो जाती है। वो महाराज कराते हैं महाराज कराते हैं। तो जय स्वामीनारायण। हाँ जी, हाँ, बहुत ही आनंद आता है। हाँ जय स्वामीनारायण। स्वामीनारायण।
स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण